کیوں فیس کی؟ اسی لیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، اسی لیے میں نے فیس کی کہ میرے درجات بلند ہوں گے اگلی لائف میں، نہیں تو اسی زندگی میں مجھے اس کا بہتر اجر ملے گا، بہتر کوئی اچھا اس کا صلہ ملے گا۔ تو یہ صلہ مل رہا ہے کہ میری یہ اوقات ہے، کتے اور گدھے کے برابر مجھے کر دیا۔ میں نے پھر اس کو، میں تب یہ کر رہی تھی، اپنے اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی اس کے لیے، تخلیق کائنات اور ہوا اور آدم کے لیے۔ تو جب پھر میں نے نا آدم علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، اچھا اسی دوران نا جو قرآن میں مختلف جو قومیں تباہ کی گئی ہیں نا ان کے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم سمود، ان پہ آگ کا طوفان۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تو آرکیالوجی جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے، اب تو باقیات نکل گئی ہیں ان کی، تو ایسی جو عالی شان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی باقیات بھی تو ہونی چاہیے نا، تو ہوں گی باقیات۔ میں نے پھر وہ آرٹیکل جو تھے، جو ریسرچ آرٹیکل تھے ان کو دیکھا، اس کے علاوہ جہاں پہ جو بک مجھے اویلیبل ہوئی نا، جو جہاں پہ بھی کسی قدیم تہذیب یا ثقافت کا ذکر ملتا تھا، میں نے وہ کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، کیونکہ میں ان کے کھوج مطلب ریفرنس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی کہ قرآن میں جن تباہ شدہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ثقافت کیسی تھی، وہ کون سی ایسے کاموں پہ، کون سے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے کئیوں کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، کئیوں پہ عذاب بھیجے گئے۔ پھر اس آہستہ آہستہ نا میں پھر ثقافتوں کو پڑھنا شروع کر دیا میں نے اسلام سے۔ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ 1400 سال جو پہلے اسلام ہے نا، اس سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں تھا، تھا ہی کچھ نہیں۔ دیکھیے اتنی عمر میری ہو چکی تھی، میں تب تک اسی وہم میں جی رہی تھی کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، وہاں پہ ترقی تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ محمد آئے تو انہوں نے بہتر حالات کیے۔ جب میں نے باقیات، یہ آرکیالوجیکل سائٹس کو پڑھنا شروع کیا، قدیم تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا، تو میں ان کو یونانیوں کو پڑھا، یونانیوں سے پیچھے وہ جو بیبلونین تھے ان کو پڑھا، مصریوں کو پڑھا، اس کے بعد وہ جو آخر پہ تھے سومیرین تھے ان کو پڑھا، سومیرین سے ہوتے ہوئے تھے غاروں کے آرٹ تک پہنچ گئی میں، غاروں کے آرٹ سے ہوتے ہوتے اس سے پیچھے چلے گئے۔ تو آہستہ آہستہ سومیرین ٹیبلٹس کی نا، جب میں نے سومیرین ٹیبلٹس کو پڑھا نا، جب مجھے پتا چلا کہ آج سے تقریباً 4500 قبل مسیح پہلے سومیرین جو ٹیبلٹس تھی، آج سے تقریباً 6500 سال پہلے، تو ان کے ساتھ جو لوہیں تھی نا ان کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ ابن حنیف ہے پاکستان میں، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ بک مجھے کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوئی، لیکن وہ آن لائن تھی، دیکھتا تھا، تو میں نے اس کو پڑھا۔ کیونکہ میں قرآن نے جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے نا، میں ان قوموں کو، ان کے حالات و واقعات کو، ان کی ثقافت کو پڑھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون کون سے فیکٹرز تھے، کون کون سی چیزیں تھیں۔ اور میں یہ بھی دیکھنا قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حدیث میں یہ میرا خیال کہ کہ ہم سے پہلے جو قومی تھی وہ ٹیکنالوجی مطلب اس مہارت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی، تو میں ان کی مہارتوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کی مہارتیں کس شعبے میں تھی، ان قوموں کی مہارتیں۔ تو جب میں نے سومیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ، ابن حنیف کی کتاب ریختہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اردو میں اس کا، تو جب میں نے ترجمہ پڑھا تو اس میں تھا یہ تخلیق کا قصہ۔ تخلیق کے قصے میں یہ سیم یہی تھا، مٹی سے تخلیق کیا گیا اور پسلی سے نا عورت کو نکالا گیا۔ میں نے جب وہ ٹیبلٹ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، میرا تو دماغ اڑ گیا۔ میں نے کہا یہ میں جس اسلام کو میں کہتی ہوں کہ 1400 سال پہلے اس نے ہمیں بتایا ہے، تو اس اسلام سے بھی 5000 سال پہلے ہی سومیرین کسی ٹیبلٹس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ جو تخلیق آدم کا قصہ ہے، جس کو میں ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی، جس کو میں نے ہر آرٹیکل سرچ کر کے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، جس پہ میں نے خلقہ اور جالا کو آپس میں کمپیریزن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم کو اتارا گیا تھا، خلقہ کا لفظ نہیں ہے، جال کا لفظ ہے، اس کو افریقہ میں اتارا گیا تھا۔ اس کے لیے میں نے انگلش کتابیں بھی ترجمے کے ساتھ بہت ساری پڑھی اس فنومینا کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن جب میں ٹیبلٹس میں دیکھا میں نے کہا اف، یہ کیا، میں اس پہ اتنی محنت کر رہی تھی، یہ تو تب کے مت ہے جب ابھی انسان نے کیا اسے کہتے ہیں مظاہر فطرت کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس سے اب سومیرین ٹیبلٹس کی بات ہے تو اس میں تخلیق کا قصہ بھی ہے، ایک تو آدم اور حوا کی تخلیق ہے نا، دوسرا زمین اور آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر اس میں،
सेम वही जो कुरान में बयान किया गया ना कि इतने दिनों में जमीन और आसमान की तख्लीक की, सेम ये सुमेरियन टैबलेट्स में मौजूद था। मैं तब भी इतनी परेशान। एक आलमगीर तूफान का जिक्र है, तूफान सॉरी वो सैलाब का जिक्र है, ये भी सुमेरियन टैबलेट्स में। मैंने कहा उफ, ये क्या, ये ये तो वो ये तो वो चीजें हैं जिनको ये मानते नहीं है, और उन्हीं से चीजें ये चुरा के अपनी तरफ लेके आ गए। फिर जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा तो वो इतनी आलीशान, इतनी रिच, इतनी उम्दा किस्म की तहजीब थी मिस्री तहजीब। मैं तो हैरान रह कि मैं तो उनका आर्ट, उनकी शायरी, उनका जो सिस्टम था, क्लरिकल सिस्टम था, लिखने का तरीका था उनका, अहराम थे उन्होंने बनाए। मैं तो उस पे मबहूत है कि उनकी मम्मीफिकेशन पे। तब ये फिरौन का खुदा भी मुझ पे खुला। यहाँ पता मुसलमानों में अक्सर क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक ही एंटिटी को फिरौन समझते हैं कि फिरौन एक ही बादशाह गुजरा है उनके नजर में। मैं भी यही समझती थी फिरौन एक ही था बस, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इतने जुल्म किए। तो जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा, वो जो उनकी 28 नस्लें थी, वो तो भाई वो तो उसमें अखनातन को जब मैंने पढ़ा तो तब मूसा का किस्सा भी। अच्छा, सागन ऑफ द कार्डियन को जब मैंने पढ़ा तो सागन ऑफ द कार्डियन जो था 1700 कबले में से, वो उसमें लिख रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे, मैं बिन बाप के मैखल में पैदा हुआ था या जो भी था, उसको उसका उसका किस्सा पता क्या है कि उसकी माँ ने उसको बक्से में बंद करके दरिया नील में बहा दिया था, और उसको नीचे से, नाम मुझे भूल गया उसका, किसी ने उसको पाला तब वो बादशाह बना। तो जब मैंने सागन का किस्सा पढ़ा तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा उससे रिलेट था। मैंने कहा ये तो किताबों में मैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ती रही हूँ कि न उसके डर से उन्होंने, फिरौन के डर से के बन किसके डर से उन्होंने पानी में बहा दिया था। तो जब मैंने खनातन को पढ़ा कि उसका किस्सा थोड़ा सा मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता ये जुलता मिला हायमा जी, कि सूरज। जी हायमा जी। जी, आपने कितना कितना कुछ पढ़ लिया है कि इतना इंटरेस्ट है क्या आपको किताबें पढ़ने में? मैंने इतनी ज्यादा किताबें इकट्ठी कर ली थी, और किताबें सारी किताबें नहीं अब मेरे पास, ये भी एक मिसहैप है। लेकिन मैं ना साहिल, असल में ना मैं कुरान, यार मैं कुरान को सच साबित करना चाहती थी अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए। तो जब मैं तहजीबों को पढ़ती गई तब मैं देखती गई कि ये है क्या, कौन कौन से किस्सा, वो कहते हैं ना भानुमति ने कुंभा जोड़ा, क्या वो ऐसी कहावत है, कहीं की ईंट और हाँ। कहीं का रोड़ा जोड़ के तो इकट्ठा कर दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था वो बहाने वाला किस्सा था, वो तो सारगम की उसके जो उसने लिखा है उसमें ये महफूज है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। जब मैंने इनकी यहूदी जो इनके कायदे कानून को पढ़ा, तो जब मैंने हम्मुराबी को पढ़ा, उसके उसके वो जो था कानून थे उसके 285 के 86 के, जब मैंने उनकी शिक्कों को पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा आंख के बदले आंख, ये सारे जो थे जिसको मैं शरीयत समझती थी कि ये इल्हामी है, भाई ये तो पहले से मौजूद चीजें हैं, जो उसमें से कुछ कुछ चीजें मुस्लिम मजाहब ने उचक ली है उनसे। तो असल जो मेरा दिमाग खुला ना वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा पढ़ के खुला। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये तो कुछ और ही है जिसको मैं सच साबित करने जा रही हूँ, ये सच साबित हो ही नहीं सकता। मैं असल में कुरान के वाकयात को सच साबित करने पे गई थी, करना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की उसको सच साबित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना, जब ऑपोजिट निकलते हैं ना, तो वो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से। अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों के अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे। तब मुझे वहां पे, अच्छा मीन वाल ना, मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है, वो मिली मुझे। वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, ये इसकी हकीकत क्या है। अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आज ही गवाही दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा।
मैंने कहा कि जो अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं, जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो हदीस थी कि जो मुझे औरत है वाली। ना वो गधे और कुत्ते के बराबर है। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीजों ने मुझे फेडअप किया, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा था। वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है, आप जाके उस सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले जाइए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई थी। फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था। हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा कि एक छोटा सा एक स्यारा जमीन जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को, अल्लाह को, हमसे क्या। वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे। वो किस पावर में मुझे लानते भेजते हैं, उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है, जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था, कि उसने बाइस्ड होके सारे सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना वो इससे हिलने, इससे परे होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर आप शौहर को कहते हैं ना मजाजी खुदा है, तो उसको उसकी बताएं कि वो क्यों मजाजी खुदा है, और जरूरत ही क्या है भाई। आप तो एजुकेशन के बगैर बच्चियों को आगे हाथ पकड़ा देते हो, अगले 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 बंदे को ये देखने भी की जहमत भी गवारा नहीं करते कि आपकी और बच्ची का क्या कैलिबर है, और जिसके हाथ में आप पकड़ा रहे हो उसका क्या कैलिबर है। तो आप तो हाथ खुद काट के अपने बच्चों के आगे भेजते हैं, भाई ये लो, ये जिसके जिम्मे हम तुम्हें सुपुर्द कर रहे हैं ना, ये इसकी स्वाबदीद है कि तुम्हें अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए। अब तुमने यहीं से मर के निकलना है। अगर तुम यहाँ से बर्दाश्त करोगे, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने ऐसे ही इसको कबूल करना है। इस बात में मेरी बड़ी बहस होती थी कि अगर वो खुद को बंदा मजाजी खुदा कह रहा है ना, तो उसकी क्या क्वालिटीज क्या है मजाजी खुदा की, क्यों है। अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लॉन्डियों पे था। मैं जब पक्की जी। मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी। मैं लॉन्डी की जगह पे खुद को रख के सोचती थी कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो जो जिसे हम झुग्गी कहते हैं, डिप्राइव्ड किस्म के लोग हैं, अगर वो पावर में आके हमला करते हैं मुझ पर, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, अच्छे खासे खानदान से हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे बंदे को कत्ल करके वो मुझे बांध के ले जाते हैं, और मुझे दूसरे या तीसरे किस्म के सिटीजन के तौर पर डील करते हैं, तो मैं हूं तो औरत ना। इतनी तजहीक क्यों मेरी, जानवरों के साथ मिला दिया मुझे, एक एंटिटी के तौर पर आप मुझे, एक जिन्स के तौर पर आप मुझे एक कॉमोडिटी के तौर पर डील कर रहे हैं आप। मैंने हमेशा से मजहब में जब भी पढ़ा ना, उसमें बाइस अनबाइस्ड औरत के बारे में मैंने अनबाइस्ड होकर पढ़ा कि औरत को, जब ये मैंने कुत्ते वाला जिक्र पढ़ा ना, फिर मैं लौंडे की तरफ भी आई। मैंने कहा कि उनको देखती हूँ कि वो कौन सी लोग होते हैं और कैसे ही उनके उनके साथ डीलिंग कैसे करते हैं। मैं तो इतनी अंधी और बहरी और गूंगी थी कि मैंने तो ये भी कभी सोचने की जहमत नहीं की कि हजरत मोहम्मद की 11 बीवियां हैं और उनकी 38 अगर लौंडियां हैं या उससे कम या ज्यादा हो सकती हैं, तो क्यों है ये। जब ये मैंने अपनी तस्दीक वाली हदीस देखी ना, तब मैंने इस तरफ भी मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तब मैंने बीबी आशा को के बारे में भी पढ़ा, जिनकी 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी।
मैं उनकी अज़ियत का अंदाजा लगाना चाहती थी कि जो उनको फिजिकल तकलीफ हुई होगी। मैं मेरे ज़हन में पता है ये क्या था? मैं इवन ख्वाब में भी ये देखती थी कि जो बीबी आशा है ना वो तकलीफ से करा रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए माँ नहीं बन पाई कभी कि मेरा इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो चुके थे। मैं खुद से ये हाँ हाँ, सोचती थी, खुद से ये सोचती थी, खुद से ये मैं सोचती थी सेम सेम। कि कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी, कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी। 9 साल की बच्ची जिसको 53 साल का जो बंदा है वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो उसकी तकलीफ का कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं किया। तब मैं फिर औरत के साथ मुझे खुद से प्यार होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि मैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके भी अब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो मैं बहुत से मर्दों से साबित तौर पर बहुत बेहतर हूँ। मैं बहुत से फैसले अहम मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, अपनी और अपने मेरे जो घर वाला है ना उसकी थोड़ा बात बता सा, रही थी। अक्सर हाइमा जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी। बड़े जी जबरदस्त तरीके से जी आपने सारी बातें बताई है, लेकिन अभी जो आपने हजरत आयशा की बात की, और ये एक जी ऐसा टॉपिक है, स्लेवरी की भी आपने बात की, हजरत आयशा की बात की, कि जो बहुत से दिमागी अपंग मुसलमान जो होते हैं, हालांकि सारे मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको सुन के उनके दिल को भी कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलता, या उनका दिल जो है मुतमईन नहीं होता कि हम नबी के इन कारनामों पर पर्दा कैसे डाले, उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें। अरे वो नूरी जी का कमेंट फिर से रखना यार, मुझे वो रीड करना था। अमित, नूरी जी का जो अभी कमेंट मैंने हाईलाइट किया था ना, वो करना, उन्होंने बहुत मस्त कमेंट किया है, उसी पे मैं आ रहा था। तो जो आम मुसलमान है कई सारे, उनको भी ये दो तीन चीजें ऐसी है जो हजम नहीं होती है, उनके पास जवाब नहीं होता है, वो उनका दिल जो है ना वो अंदर से कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार हमारे नबी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बच्ची के साथ शादी करके, बच्ची के साथ जो है वो सेक्स करके उसका उसको अब्यूज करना, ये क्यों किया हमारे नबी ने। तो इसके बावजूद भी चूंकि उनका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत होता है और दिमागी अपंगता बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल पाती है, वरना ये चीजें भी चुभती है। नूरी जी ने एक बहुत जबरदस्त कमेंट किया था, लेकिन वो मैं रखा था, लेकिन वो कमेंट हट गया। नूरी जी अगर आप है तो प्लीज एक बार वो कमेंट आप फिर से टाइप करके लिख दीजिए, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात नूरी जी ने कही थी। नूरी जी ने लिखा था कि मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को टॉयज देने के बजाय, डॉल्स देने के बजाय, वो अपनी बच्चियों के हाथ में मर्द का सामान दे देते हैं, शर्मगाह दे देते हैं। और ये बात उनकी हम्म बहुत सही है, और ये सीधा जाती है, हाँ, मैनहुड सीधा जाती है ये रसूलुल्लाह पर भी। आपने डॉल का जिक्र किया, हदीस में डॉल का जिक्र आता है, वो गुड़िया से खेलती थी, हजरत आयशा जो वो गुड़िया से खेलती थी, गुड़िया से खेलने की उम्र में उनको क्या पकड़ा दिया हाथ में रसूलुल्लाह ने, आप खुद अंदाजा लगाओ। और ये हाल जो है वो ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले तक किसी एक शख्स ने किया, वो 1400 साल पहले वाले शख्स को देखकर, उनको रोल मॉडल मानकर, उनको बेहतरीन नमूना मानकर, कई सारी जगह आज भी ऐसी है, अफगानिस्तान है और इराक है या सीरिया है, यहाँ पे कई सारी जगह पे यही हरकत हो रहा है। जो बच्चियां खिलौना खेलना है, टॉयज के साथ खेलना है, वो उनके साथ शादी करके उनको जो है वो मैनहुड पकड़ा दे रहे। तो थैंक यू सो मच नूरी जी, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने वो कमेंट लिखा था। नहीं, ये वाला नहीं था, खैर मैंने वो उसको एक्सप्लेन कर दिया वो क्या कहना चाह रही थी नूरी जी। सिस्टर्स नीड टू हैव हर ओन यूट्यूब चैनल विद ऑल हर नॉलेज, इनका चैनल है, पूरी टीम है इनकी, और आप लोग जो है इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले जी। हाइमा जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें आपने जब पढ़ी तो यू वर शॉक्ड, और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, आपको हजरत आयशा जो है वो ख्वाब में आ रही थी। हालांकि कितनी बेगैरती की बात है उन मुल्ला मौलवियों के लिए जिनके ख्वाब में मोहम्मद साहब आते,
جن کے خواب میں خواجہ معین الدین چشتی آتے، جن کے خواب میں عبد القادر جیلانی آتے، ان کے خواب میں یہ بالکل سارے بزرگ لوگ آتے ہیں. ان کے خواب میں کبھی حضرت عائشہ نہیں آئی اپنی تکلیف بتاتے ہوئے، کیونکہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے، یہ سوچتے ہی نہیں ہے. ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے جیسا کیا ہے ویسا ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. تو ان کے خواب میں وہ حضرت عائشہ کی تکلیف کیسے آئے گی؟ یہ خالی رسول اللہ کو دیکھتے، حضرت عائشہ کی تکلیف کو نہیں دیکھتے. ہاں اگر کوئی واقعی میں ایک مہیلا ہوگی، فیمیل ہوگی، اور اس نے یہ قصہ پڑھا ہے، اس نے یہ بات سنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خواب میں حضرت عائشہ جو ہے وہ ضرور آئے گی، اس کی تکلیف ضرور نظر آئے گی. جی ہائمہ جی. جی بالکل ساحل، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، مجھے پتا ہے فزیکل پین کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی ہے، 9 سال کی بچی ہے، ایک بندہ انٹر کورس کر رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو کٹ پھٹ گئی ہوگی. تو میں اس اذیت کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کتنی اذیت میں وہ عورت رہی ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی تھی تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور آگے سے سارے راستے اس کے لیے مسدود کر دیے لوگوں کی. حات المومنین کے ساتھ واقعی میں بڑی ہمدردی محسوس ہوئی. میں نے جب صفیہ کو دیکھا کہ وہ جو خیبر کی فتح کے بعد ان کا جو حال تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا، اس کے والد کو مار دیا گیا، اور اس کو نکاح کر کے بستر پہ لے گئے، تو یہ شاکنگ تھی میری چیزیں. مجھے تقریباً کیا کہتے ہیں 1.5 2 سال ڈپریشن کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں یا پریشانی کہہ لیں، میں بتا نہیں سکتی تھی. میں اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے قبول کروں حقیقت کو. مجھے قبول، حقیقت سامنے تھی ساری، لیکن مجھ سے وہ قبول کرنی بڑی مشکل تھی. میں قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اتنی اس میں نا کھبی ہوئی تھی. اس کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ میں کروں گی کیا، کہ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا، کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے پھر مجھے باقی میں نے کہا قدیم ثقافتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا مین وائل نا قوم لوط کا میں نے پڑھا ہوا تھا، قوم لوط کا یہ تھے اور قوم لوط وہ تھے. میں نے نا پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ یہ پرسنالٹیز کیا ہوتی ہے. میں نے فرائڈ کو پڑھا. جب میں نے فرائڈ کو پڑھا نا، سیگمنڈ فرائڈ کو، بھائی اس نے تو ان کی کیا اسے کہتے ہیں مذہب کی چولہے جسے کہتے ہیں بنیادیں وہ ہلا دی. اس نے میری بھی بنیادیں ہلا دی سیگمنڈ فرائڈ نے. جب میں نے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، میں اصل میں نا محمد کی نفسیات کو پڑھنا چاہتی تھی کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا تھا کہ وہ چھوٹی بچی سے بھی کہ ہم بستری کر رہے ہیں. وہ 11 عورتوں کے ساتھ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، اور ہم اتنی عقیدت کے ساتھ اس بندے کو پوچھ رہے ہیں. تو اس کی نفسیات کیا کہتی ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے، وہ کون سی شخصیت، کون سا ان کا وہ پہلو ہے کہ وہ اس قسم کی کام کر رہے تھے. خود کو جسٹیفائی کرنے کی میں کوشش کر رہی تھی، خود کو سمجھانے کے لیے. میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی تھی، میں نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں پتا تھا میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے، کیا میرے اندر پک رہا ہے. لیکن میں خود کو پھر میں انالیسس اس طرح سے کرتی تھی کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، اور جو موجودات ہیں، جو آرکیولوجیکل ایویڈینسز ہیں، جو ثبوت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ڈیٹس آ چکی ہیں کہ یہ اتنے اتنے ٹائم تک پرانی ہے. اور وہ یہ بھی چیزیں بتاتے ہیں، اگر کوئی فوسل ملا ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہا تھا تب، کس قسم کے حالات تھے. میں نے ان سب کو پیرل رکھ کے سوچا جب میں انالیسس کرتی تھی قرآن میں کیا اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، آرکیولوجیکل فیکٹس کیا کہتے ہیں. اور تب میں دیکھتی تھی کہ وہ جو آرکیولوجیکل جو تھے وہ ان کا کیا جواب ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو کیسے پورٹریٹ کیا ہے. صرف ایک واقعے کو یہاں پہ بتا دیتی ہے، ایک قوم کو جس کو یہ قوم لوط کہتے ہیں نا، کہ وہ ہم جنسیت میں مبتلا تھے، ان پہ آگ کا عذاب آیا. پومپئی 79 میں اٹلی کا ماؤنٹ ویسوویس جب پھٹا تو وہاں پہ وہ اتنے خوشحال قسم کے لوگ تھے جن پہ وہ 20 فٹ جو تھی وہ طے اس میں دب گئے. جب میں نے اس تہذیب کو وہ چھوٹی سی جو کمیونٹی تھی ان کو پڑھا جب، تو وہ تو بڑے ہی
प्यारे लोग थे, उनका आर्ट इतना जबरदस्त है, मोज़ैक उनका आर्ट है, वो शीशे के छोटे-छोटे टुकड़े जोड़ के नहीं जो बनाई जाती मुख्तलिफ शबीहें तस्वीरें, आर्ट जो है उनका, मोज़ैक आर्ट, उनका मोज़ैक आर्ट इतना वो बेहतरीन है ना उनका, पोम्पई का। इसके अलावा उनकी पेंटिंग्स इतनी बेहतरीन है, उनका वो जो सारा रहने सहने का इंतजाम है वो इतना बेहतरीन नायाब किस्म का है। लेकिन वो उनके उसी वाक्यों को इतना पर इन्होंने पेश किया वो। जी साहिब। आहिमा जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। अभी जो लास्ट में आपने कहा वो फिर से रिपीट कर देंगे, आर्ट्स के बारे में आप बता रही थी। हाँ, उनका जो पोम्पई पोम्पई से है, ये कौम लूत कहते हैं ना, कि कौम लूत जो थी वो लवातत में थी, और उनकी वजह से उनपे आग का होमोसेक्सुअलिटी में और इन्वॉल्व थे वो लोग। हाँ तूफान आया उनपे, उनका अजाब भी उन्होंने बताया हुआ ना कि उनपे बड़े बड़े पत्थर और आग का अजाब आया। तो तस्वीरें ना मैंने देखी उनकी पोम्पई वालों की ना, तस्वीरें अक्सर नेट पे मिल जाती हैं, आप देखिए वो उनके पोज बेचारों किस तरह से हैं। उनको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट करके बनाया है कि वो जी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह ने ऊपर से उनको अजाब दे दिया, तो वैसे के वैसे ही फ्रीज हो गई। तो जब मैंने उसकी पोम्पई वालों को पढ़ा, उनकी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ा, तो भाई जब आप पे तपता हुआ लावा गिरेगा तो आपके मसल्स जहां पे भी आप हैं वो आप इस किस्म की पोजीशन में आ गए कि आपके पट्टे जो ना सिकुड़ जाएंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस में वो लोग थे, ऐसे ही जब राख के नीचे दब गए तो वो महफूज हो गए। तो मैंने तो कौम लूत की समझ के उसको पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब मैं पोम्पई की सकाफत को पढ़ा 79 एडी की बात है, तो वो तो बड़ी रिच सकाफत थी उनकी। मोज़ैक आर्ट उनका बेहतरीन है। मोज़ैक आर्ट वो होता है जो छोटे छोटे शीशे जोड़ के ना टुकड़ों की शक्ल में वो पूरे पिक्चर बनाते हैं। तो उनकी बेहतरीन किस्म की मोज़ैक आर्ट है, उनका उनका आर्ट बेहतरीन है, पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त है उनकी, उनका उनके लिबास बड़े प्यारे थे। तो मैंने जब वो पोम्पई वाले उनको पढ़ा, असल आर्कियोलॉजिकल हकीकत को जब पढ़ा, जब मैंने कुरान के साथ उसका कंपैरिजन किया, कौम लूत जो बताई गई है, भाई ये क्या हुआ, ये तो किसी ने अपने तरीके से उसको पोर्ट्रेट कर दिया, वो तो बड़ी प्यारी कौम थी, वो तो बड़े रिच थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले ना मैं समझ पता क्या समझती थी कि हिंदू जो है ना, हिंदू ये हिंदुस्तान में ही है, तो ये तो 1947 या उसके आसपास कहीं है। मैं ये समझती थी पहले कि हिंदू मजहब है ना, ये तो बाद की बात है, हमारा इस्लाम तो बहुत पहले की बात है। मैं 1400 साल को बहुत लंबा अरसा समझती थी कि ये बहुत लंबा अरसा है। तो जब मैंने जमीन की पैदाइश और अपनी निजामी सोलर सिस्टम की पैदाइश के बारे में पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये तो कल का चूंगड़ा मजहब है। जब मैंने जब मैं इंडस, क्या कमाल तहजीब है यार इंडस वैली की, जो जो सिंध से, ये जो सिंध में मौजूद है हमारी इंडस सिविलाइजेशन, जब मैंने इनको पढ़ा तो इतनी रिच, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है। वहां पे गर्म हम आवाज आपकी फिर से चली गई है। आवाज आपकी फिर आवाज से चली गई थी। हाइमा जी, आवाज फिर से मैं चली रूटर गई के थी। मैं रूटर के सराहने बैठी हुई है, पता नहीं अब रूटर कहाँ पे सिग्नल पे खेल रहा है अपने। आपका रूटर आज धोखा दे रहा है आपको। पता नहीं आ सच्ची रही, कह आ रहे रही। हैं वैसे इंडस धोखे वैली के के जो बारे में, दो, इंडस वैली भी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा, वो बता रही थी। आप उसको थोड़ा सा रिपीट करिए आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरत ज़दा रह गई। मैंने कहा इतनी रिच इंडस वैली, वो मेरे मुल्क में मौजूद है। मुझे कभी बताया ही नहीं गया, हमारे बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया इंडस वैली के बारे में। ये कौन सी रिच सिविलाइजेशन है, ये वो सिविलाइजेशन है जब, पता क्या है, मैंने इतना डीपली इन तहजीबों को पढ़ा कि मेरा ये मानना है कि इंडस वैली तब की सिविलाइजेशन है जब अभी बाकी मेसोपोटामियन और बाकी सिविलाइजेशंस अभी क्रॉलिंग कर रही थी। तब ये पीक पे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तब पीक पे थी जब बाकी तहजीबें अभी क्रॉल कर रही थी। ये इतनी रिच तहजीब है, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है इनकी। तो इनका जब मैंने आर्ट, इनके मुजस्मे, इनका वो तजारत, जब मैंने इनकी चीजों को पढ़ा, मैंने कहा कि ये तो इस्लाम से कई 100 साल पहले की बात है, 1000 साल गुजर गए।
इस तहजीब को। तो इससे बाद वाली तहजीब जो मोहम्मद साहब की तहजीब है, जिसकी मैं पैरोकार थी, मैं मानने वाली थी, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, आप पूरा उनका वो उठा के देख लें, कौन सी माशरत है उसमें, कौन सी कायदे कानून है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तो हम्मुराबी का कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें 285 सिक्के तो मौजूद है ना। इसमें क्या है कि आपने इस हाथ से ये काम करना है, आपने इस हाथ से वो काम करना है, आपने टखनों तक शलवार रखनी है, आपने टखनों से नीचे रखनी है, आपने आंख उठा के नहीं देखना, आपने ये नहीं करना, आपने अच्छा, वो नहीं करना। इसमें बे इंसान। इस हैमा हैमा जी, मेरे को सच्ची में हंसी आ गई ये जो आपने बताया। सलवार टकलों के ऊपर रखना है। मेरे को ये अभी जब मोमिन आजाद थे तो मैं यार वो मेरी कितनी सारी जीन्स और वो जो मेरी ट्राउजर होती थी उसका मैंने सत्यानाश कर दिया था उसको टखने से ऊपर करने के चक्कर में, ताकि जो है वो सुन्नत पे अमल हो और वो अल्लाह के रसूल की वो हदीस, रसूल मोहम्मद साहब की हदीस कि जिसका कपड़ा जो है वो टकने के नीचे रहेगा वो उतना हिस्सा अल्लाह जो है वो जहन्नम में जलाएगा। तो वो जहन्नम से हाँ बचने के लिए जो है कई सारे कपड़ों की मैंने बैंड बजा दिया था। ऑफिस में काम करता था, क्लाइंट मीटिंग पे जाता था, तो वो यार जोकर लोग की तरह वो पैंट ऊपर, जैसा वो एमएलएम वाले जो है वो नहीं पहनते, वो नीचे से पैंट उनकी ऊपर होती है, वैसा मैं भी पहना करता था। तो अगर उसको आप जो है थोड़ा ये अपंगता से निकल कर सोचे, आप सोचो या, और ये मोमिन हजरात जितने सुन रहे होंगे अभी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई ये क्या बात है कि कपड़ा अगर आपका पैजामा, आपकी सलवार टखने के नीचे है तो उसको जहन्नम में अल्लाह जलाएगा उतना हिस्सा। ये कैसा खुदा है रे भाई।